welcome you all in your subject Science, Chapter 3, Workbook Solution, Part 1. Okay, so open your book, page number 26. Let's start with exercise 5th. Okay, students, exercise 1 to 4, there are some MCQ, filling the blanks, true, false. Okay, they are short answers. So you can read the chapter and try to fill up the details by yourself. Okay, and I know that you can do it that. Okay, let's start. Question 1, state two main types of fibers. Yes, two types of fibers कौन से हैं? Natural fibers and synthetic fiber. Okay, give 3 examples of synthetic fibers. Synthetic fibers के example nylon, acrylic, polyester, they are synthetic fibers. Okay, from which animal do we get wool? चलो, कौन सा एनिमल हमें वूल देता है? वेरी इजी. ओके, यस, वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लैश ऑफ शिप. अब तक हम सिर्फ शिप बोलते थे बिकॉज छोटे बच्चों के लिए सिर्फ शिप इज इनफ, बट नॉट ओनली शिप but camel, some camel, rabbit, goat and yak. Okay, they give us wool. Understand? What is the fruit of the cotton plant called? Yes, the fruit of cotton plant is called cotton balls. Okay, from where do we get silk fibers? Yes, silk fibers कहाँ से मिलता है हमें? We get silk fiber from the cocoon of silkworm. एक स्पेशल जो आती है कैटरपिलर सिल्क की, वही सिल्कवॉर्म जो होती है वही कॉकून अपने आसपास बनाती है, उससे हमें सिल्क मिलता है. ओके, इन विच पार्ट्स ऑफ इंडिया इज जूट ग्रो? यस, इंडिया के कौन से पार्ट में जूट ग्रो होता है? इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ओके, from which device is used for weaving fabrics? चलो, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं फॉर weaving? ओके, a loom is used for weaving fabrics. ओके, looms यूज होता है फैब्रिक बनाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 4 cloths that we wear without stitching. यस, चलो, ऐसे कोई क्लोथ्स का नाम दो जिसे हम बिना सिए हुए पहनते हैं. सिला हुआ कपड़ा कौन कौन सा पहनते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन. ओके, हमारा दुपट्टा, स्कार्फ्स, ये सब हम विदाउट स्टिचिंग पहनते हैं. ओके, उनको स्पेशल सिलने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ cotton plant are cotton fiber obtained? Yes, cotton fibers are obtained from the flower of cotton plants. कॉटन प्लांट्स का जो फ्लावर का पार्ट है उसमें से कॉटन मिलता है. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट आर जूट फाइबर ऑब्टेन? जूट प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं जिससे हमें जूट मिले? यस, जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम
the stem of jute plant. Okay. Next question. What do you mean by natural fibers? State this type with the example. Okay. Yes. Fibers that are obtained from the plants and animals are called natural fibers. जो नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें सिर्फ प्लांट और एनिमल्स देते हैं they are called natural fibers. Okay, there are two types of natural fibers: plant fibers like cotton and jute. Okay, ये plant fibers हैं और animal fibers like wool and silk. Okay, now open next page. How is jute obtained from jute plant? Okay, jute plant में से jute कैसे मिलता है? Okay, we have already discussed in our chapters video. हमने देखा था कि jute plant होता है, उसमें पहले उसको पानी में बहुत दिनों तक सोक किया जाता है, फिर वो थोड़ा ऐसे इमर्ज हो जाए, मतलब थोड़ा सड़ जाए, ऐसे इमर्ज होने के लिए उसे रखा जाता है। फिर उसका जो स्टेम पार्ट होता है उसमें से जूट बनता है। ओके, उसमें से हाथों से एक एक उसके यान को अलग किया जाता है। तो जूट प्लांट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स एंड हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट is immersed in water for a few days. The stems rot and the fibers are separated by hand. These fibers are collected and dried. फिर उसे कलेक्ट किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the uses of silk fibers and wool fibers? Very easy. चलो, सिल्क फाइबर्स के क्या यूजेस है? मेक सिल्क क्लॉथ्स, राइट? जैसे कि सिल्क साड़ी, सिल्क ड्रेस, स्कार्फ्स, ये सब होता है। ओके, और वुल भी वी यूज डिफरेंट क्लोथ्स इन अ विंटर सीजन. ओके, सो सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ्स. सिल्क क्लॉथ्स इज यूज्ड मेकिंग costly sarees, okay, kurtas, scarves, ties, etc. And wool fibers is used for making sweater, cap, muffler, shawl, socks, and gloves. Okay. Next, what are the uses of jute fibers and coconut fibers? Yes, jute fibers. इससे हमारे घर के जो डोर मैट्स वगैरह होते हैं और जो ग्रेन्स भरने के लिए सैक होते हैं, राइट, बोरी बोलते हैं ना हम, जिसमें जो ग्रेन्स भरते हैं फार्मर्स, तो वो उससे बने होते हैं. जूट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द जूट फाइबर्स. दिस क्लॉथ इज यूज्ड टू मेकिंग कैरी बैग्स. ओके, jute cloth is also used for making doormats, rope, and mats also. And coconut fibers are used for making ropes, mats, doormats, and चारपाई. ओके, कोकोनट फाइबर्स होते हैं, उसकी चारपाई वगैरह भी बनती है बैठने के लिए. ओके, जिसे हम ऐसे बोलते हैं ना, कारपेट जैसा, ऐसी चारपाई, तो वो उससे बनती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कॉटन फाइबर एंड जूट फाइबर. चलो, कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट एंड जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. ओके, फिर कॉटन फाइबर इज यूज फॉर फिटिंग मैट्रेस, क्विल्ट
and pillow, okay, and cotton cloths. Jute fiber is used for making gunny bags, carry bags, ropes, mats, doormat, etc. Okay, now turn the page. Spinning and weaving. Okay, there are two processes to make fiber to fabric. Okay, हमें कोई फैब्रिक बनाना है तो ये दोनों प्रोसेस ज़रूरी है, पर दोनों अलग अलग है. स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. फाइबर में से यार्न एक धागा जो बनता है, बराबर, तो वो बनाने के लिए हम स्पिनिंग करते हैं. और वीविंग क्या है, उसके बाद का प्रोसेस. वीविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न. यार्न का जो क्लॉथ बनता है वो वीविंग है, मतलब पहले स्पिनिंग होता है फिर वीविंग. ओके, हैंड स्पिंडल एंड चरखा आर यूज फॉर स्पिनिंग. उसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है, हैंड स्पिंडल एंड चरखा. ओके, और वीविंग में कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, लूम्स. ओके, फिर वो पावर लूम हो या तो हैंड लूम, उसे लूम बोला जाता है. तो लूम इज यूज फॉर वीविंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर. चलो, नाइलॉन नेचुरल की सिंथेटिक, सिंथेटिक. वूल नेचुरल, कॉटन नेचुरल, एक्रिलिक सिंथेटिक, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर synthetic, jute natural, and terylene synthetic. Okay, next question. Match the following. Okay, in column A there are different type of fibers, and in column B there are some uses of fibers. कौन सा किस में से प्रोडक्ट बनता है. Okay, there are product from the fiber. चलो, कॉटन. कॉटन का क्या होता है, स्वेटर, टॉवेल, कॉस्टली साड़ी, रॉप की सैक. ओके, तो क्या बनता है कॉटन का, टॉवेल. कॉटन टॉवेल होते हैं, राइट. सिल्क सीधा पता चल जाएगा, सिल्क के क्या है, कॉस्टली साड़ी. एंड वूल स्वेटर. एंड जूट, जूट का क्या बनता है, अभी मैंने बोला था ग्रेन्स भरने के लिए सैक, राइट. तो फर्स्ट जॉइन विथ बी, सेकंड विथ सी, थर्ड विथ ए एंड फोर्थ विथ ई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Answer the following question. How is fabric woven from yarn? Clothes is woven from yarn. देखो, फैब्रिक जो बनता है तो यार्न को कैसे वोवन किया जाता है. So clothes is woven from yarn using either power operated looms or hand operated looms. मैंने बोला ना 2 टाइप्स के लूम्स होते हैं. तो पहले के लोग हाथों से भी, हाथ की जो लूम होती है उस मशीन को बोलते हैं. लूम मीन्स एक मशीन. मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, राइट. सो yarn आर अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर एंड स्ट्रेट लाइन्स ऑन अ लूम, एंड देन अनदर सेट ऑफ द yarn इज पास्ड अक्रॉस टू फॉर्म अ crisscross pattern. Okay, in this manner cloth is obtained by 2 sets of yarn. This process is called weaving. The method is in which single yarn is used to make piece of fabric is called knitting. अगर एक ही yarn यूज होता है तो उसे knitting कहते हैं. Okay, so weaving and knitting methods are used for making fabric from yarn. धागे में से अगर सिंगल yarn यूज किया जाता है तो इट इज कॉल्ड knitting. ओके, फिर दोनों को सेट किया जाए तो
weaving. Next question. Describe the process of making yarn from fiber. चलो, कैसे yarn बनाया जाता है? The process of making yarn from fiber is called spinning. उस process को क्या बोलते हैं? Spinning. In this process, fibers from a mass of cotton are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. Okay? So simple devices used as spinning are hand spindle, takli or charkha. We have seen in video. Okay? वीडियो में हमने देखा था चरखा और तकली का वीडियो भी देखा था, पिक्चर देखा था ना, तो आप देख लेना. ओके, सो दिस इज अबाउट द फैब्रिक टू fiber to fabric. Okay, thank you.